Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Good evening, good evening. Audio video okay? All well? I hope आज कोई दिक्कत नहीं हो रही. Health is just all right. Thank you. Good evening. So today you were introduced to Himanshu sir. Yes, good. He is an absolute phenomena. I have trust issues and I trust him blindly. Happy Valentine's Day to all of you. Yes. हाँ मतलब excellence is the only benchmark, which is why it takes so long to, and Himanshu sir has had such a long association with the exam, with, writing, content for the exam. And so for him to now come it's not a sudden transition. He's been doing this with me for a very long time. And, you know, Phil, all the tests that you see back in the day, they were all made by him. Good, yeah, of course. And a very, very normal journey, but excellence. He's epitome of excellence. Yes, yes, we're expecting him in the list this year. Chalo, good. Let's get back to work. All right, ladies and gentlemen, good evening, good evening. कोई गम नहीं होगा बेटा. आज आज पार्लियामेंट इज योर वैलेंटाइन. शुरू करते हैं. ठीक है. यस, एब्सोल्युटली. चलो. Legislatures and elections. Our focus is legislatures. We've done a broad overview and some core underlying concepts. We also remember our golden rules, our approaches जो हमने already starting में discuss कर चुके हैं. Now we're going to move to composition, understand some core concepts of composition. इसमें हम सीखेंगे कि भाई प्रेसिडेंट एंड गवर्नर respectively are parts of their legislatures. We will understand the why. We'll also understand the essentials of a parliamentary system, the functional difference between a parliamentary system and a presidential system. We'll also understand the difference between our parliamentary system and the UK's parliamentary system. We'll then move to houses, presiding officers, procedures, and so on and so forth. ठीक है, शुरू करते हैं. Composition से. Now, as we understand, union legislature या parliament is largely governed by Articles 79 to 122, Part 5 of the Constitution. State legislatures are largely governed by Articles 168 to 202, Part 6 of the Constitution. Clear? Now, the first part, the first article, 79 and 168, has to be examined.
79 and 168 are mirror articles to each other. We have to understand them very clearly. We have to understand what is it that they're trying to say and why are they saying what they're trying to say. देखो, कहने का मतलब ये है कि Parliament of India includes the President, the Lok Sabha, and the Rajya Sabha, and state legislatures include the governor, and also at the same time state legislative assemblies and state legislative councils. State legislative councils are only in a few places. State legislative councils are not uniform. ठीक है, जो हम कल बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि इन दोनों का लेजिस्लेचर का पार्ट होने का रीजन का लॉजिक एब्सोल्युटली सेम है. So let's first understand why is that the case, what is the reason behind it, क्यों हम इसके बारे में बात करते हैं, why do we keep the head of the state the part of the parliament. ठीक, शुरू करते हैं. Why? पॉइंट नंबर 1, कोई भी बिल, कैसा भी बिल हो, वो बिना प्रेसिडेंट या गवर्नर के असेंट के लॉ नहीं बन सकता. तो कहने का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस requires executive assent or requires the president or the governor's assent. तो लोकसभा या असेंबली या कोई भी कितने भी बिल पास कर ले, जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर उसको पास करने के बाद साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल एक्ट बन नहीं सकता, वो इन्फोर्स हो नहीं सकता. इसके पीछे के अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को समझिए कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इफेक्टिवली तो वही करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे करने के लिए लार्जली. तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को एग्जीक्यूटिव की मर्जी के बिना आप लागू नहीं कर सकते. ऐसा क्यों है? क्योंकि लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो तो एग्जीक्यूटिव के पास है. कल को आपने एक लॉ बना दिया जिसमें एबीसी को आपने क्राइम बना दिया या ऑफेंस बना दिया, उसको इन्फोर्स करने का काम तो एग्जीक्यूटिव का है. अगर एग्जीक्यूटिव को लगता है कि आज हम रेडी नहीं है, हमारी मशीनरी इकोसिस्टम रेडी नहीं है, तो हम लॉ बना के कैसे करेंगे? क्योंकि अगर वो इन्फोर्स नहीं हुआ तो फिर जुडिशरी हमको डांटेगी, देन वी विल हैव अ लार्जर प्रॉब्लम. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है because the council of ministers are also a part of the legislature. Council of ministers are also a part of the legislature. तो इसका मतलब इनकी मेजॉरिटी के बिना ना तो बिल पास हो सकता है और ना इनकी मर्जी के बिना बिल लागू हो सकता है. And that is the kind of duality that exists in a parliamentary system of government. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात, this shows a link between the legislature and the executive. अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट यू आर आल्सो लिंक्ड टू द पार्लियामेंट, राइट? अब कल को हमें हाउसेस को समन करना है, हमें सेशन खत्म करना है, राइट? वो करता तो प्रेसिडेंट ही है. हाउस हमें डिसॉल्व करनी है, वो करते तो प्रेसिडेंट ही है. अगर प्रेसिडेंट को कुछ कोर लेजिस्लेचर रिलेटेड फंक्शंस करने हैं तो आपको उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट तो होना होगा. यू आर ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. You are a part of the parliament but not a member of the parliament.
ये लिंक होना इसलिए जरूरी है बिकॉज इसी से आप एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर इन्फोर्स कर पाते, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड है. इफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर was not a member, was not a part of the legislature, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की रिपोर्ट्स कैसे टेबल होते, सवाल कैसे उठते, परफॉर्मेंस कैसे चेक होती. करेक्ट. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है. तीसरा, कहीं ना कहीं इसमें आपको एक चेक्स और बैलेंसेस भी देखने को मिलता है. जो फाइनली लॉ पास हो रहा है वो हाउस की अथॉरिटी से भी पास हो रहा है और हेड ऑफ स्टेट की अथॉरिटी से भी पास हो रहा है. तो जो पार्लियामेंट है वो एक प्योरली हाउस ड्रिवन बॉडी नहीं है. इट इज सिंबलाइजिंग अ यूनिटी इन नेशनल लॉ मेकिंग और रीजनल लॉ मेकिंग. सीधी सीधी तो बात ये है ना कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, सीधी सीधी तो बात ये है ना कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलके लॉ बना रहे हैं. सीधी बात तो ये है. करेक्ट. फोर्थ, there are some exclusive powers which are given to them, the president and the governor. Some very very important powers, जैसे हाउसेस को समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर कर सकते हैं. सो दैट मीन्स दे आर प्लेइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल. ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने मन से डिसाइड कर रहे हैं कि कल हाजिर हो. इसके पीछे एक पूरी प्रोसेस है. इसके पीछे एक मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है. इसके पीछे लोकसभा सेक्रेटेरिएट है. नो डाउट. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम the decision is being issued in the name of the president. और जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी. So there is a sense of exclusivity. You are performing an administrative role as well. ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. देन ये तो हमारे कोर रैशनल्स हो गए. इन कोर रैशनल्स का कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी तो है. जैसे जो स्पेशल एड्रेसेस होते हैं, दो तरह के एड्रेस होते हैं, जनरल एड्रेस और स्पेशल एड्रेस. जनरल एड्रेस है कि ये लोग हाउसेस को कभी भी एड्रेस कर सकते हैं. प्रेसिडेंट ने कभी भी आज तक अपनी जिंदगी में नहीं किया. लेकिन स्पेशल एड्रेस कंपलसरी होता है. नई नई लोकसभा आई है तो सेशन का पहला सिटिंग, और हर साल के पहले सेशन की पहली सिटिंग में प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है. उसी को मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं. यही चीज स्टेट लेवल पे भी होती है. तो प्रेसिडेंट का जो प्रैक्टिकल रोल है वो एक सेरेमोनियल रोल नहीं है. इट इज नॉट जस्ट अ सेरेमोनियल रोल, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल. प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर का कोई भी डेलिबरेटिव रोल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है. वो हाउसेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो कुछ तरह के बिल्स को रिटर्न कर सकते हैं. तो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल. जब भी प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ तरह के बिल्स रिटर्न करते हैं तो बैठ के हाउस में डिस्कस नहीं करते कि क्यों ऐसा करना चाहिए आपको. दे टेक इट बैक टू द हाउस में कि आप डिस्कस करो, आप समझो, आप पास करके वापस लाओ. आप पास करके वापस ले आओगे तो कोई बात नहीं, मैं पास कर दूंगा, अब आपकी मर्जी के ऊपर क्या ही है. बट इसके कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी है. आर वी क्लियर ऑन दिस? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंसेस्टर्स हैं यूके, कोई टर्म इस्तेमाल होता है क्वीन इन पार्लियामेंट. वो क्वीन इन पार्लियामेंट का मतलब क्या है? दैट द मोनार्क इज फॉर्मली ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. आज हम किंग इन पार्लियामेंट बोलते हैं बिकॉज टुडे वी आर सर्व्ड बाय किंग. ठीक है.
तो हमने वहां से अडॉप्ट किया है, उसको बहुत डाइल्यूट करके, बहुत फिल्टर करके, बिकॉज आवर हेड ऑफ स्टेट इज अ रिपब्लिकन हेड ऑफ स्टेट, एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट विच इज नॉन हेरिडिटरी इन नेचर, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल तो सेम ही है। तो 100 बात की एक बात तो ये है that the president is a part of the parliament not to legislate directly but to provide some form of constitutional legitimacy, a sense of unity, a final assent to the will of the people. Because लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने एजेंडा पे बहुत फिक्सेटेड होते हैं। लोकसभा इज अ हाइपर मेजोरिटी हाउस, और जरूरी नहीं है जो मेजोरिटी चाहे वो देश के लिए ही अच्छा हो। एंड राज्यसभा इज अ हाइपर फेडरल हाउस, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो स्टेट्स के लिए शायद अच्छी ना हो लेकिन देश के लिए अच्छी हो। जीएसटी फॉर एग्जाम्पल। तो इन सब फैक्टर्स को बैलेंस करना पड़ता है। पॉलिसी एंड लॉ इज अ बैलेंसिंग एक्ट। तभी तो हमने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना, द रैशनल बिहाइंड इट। सो ऑल ऑफ दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्टिंग ए पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें हम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, हाई अकाउंटेबिलिटी एंड लो स्टेबिलिटी के फीचर्स देखते हैं। और एक लाइन में अगर कभी यूपीएससी पूछ ले तो हमें बस ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में कुछ भी लिखा हो, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर, दिस इज यूनिक टू अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। द डिग्री कैन चेंज, all parliamentary systems will not have the same degree of executive accountability, right? जितना ज्यादा पार्लियामेंट पावरफुल होगा उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगी। पार्लियामेंट उतना ज्यादा पावरफुल होगा जितना कम कॉन्स्टिट्यूशनल इकोसिस्टम होगा। तो आप इसको लॉजिकली सोचो, यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, यह हमने इनिशियल क्लासेस में सीखा था। यूके में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो यूके में एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी वुड बी द हाईएस्ट, राइट? द लास्ट वर्ड विल बी ऑफ द पार्लियामेंट। इंडिया में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप पार्लियामेंट को भी बैलेंस कर रहे हो, आप जुडिशियल रिव्यू को भी बैलेंस कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को भी बैलेंस कर रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव के मैंडेट को भी बैलेंस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन कम होगी। यहां एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी क्यों है? बिकॉज एग्जीक्यूटिव होने के लिए आपको लेजिस्लेचर का पार्ट होना पड़ेगा। मंत्री बनने के लिए एमपी होना जरूरी है, आज नहीं तो 6 महीने बाद। ये हम जब एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स की प्रोफाइल्स पढ़ेंगे तो सीख लेंगे, बहुत आसान नहीं है। यस, क्लियर ऑन दिस? कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली लिखा है इसका इंडियन वर्जन। क्यों? क्योंकि हमारे 4 शब्द क्या है? वी आर ए फेडरल रिपब्लिकन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए तो भाई आपने पार्लियामेंट बता दिया, फेडरल के लिए आपने लोकसभा अलग कर दी, राज्यसभा अलग कर दी, रिपब्लिकन के लिए आपने प्रेसिडेंट बना दिया, डेमोक्रेसी आपकी पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट कर दी है। तो अब ये हमारा फेडरल नेचर क्या है? सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। तो अगर एग्जीक्यूटिव दोनों पे अकाउंटेबल होगी तो स्टेट्स
मंत्रियों को निकालने की पावर रखते हैं। तो इसका इंडियन वर्जन क्या निकाला? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर collectively responsible to the Lok Sabha. This is called the doctrine of collective responsibility. We will discuss this in the executive also. Don't worry. इसका क्या मतलब है, इसके क्या फैसेट्स हैं, व्हाट डज इट मीन, इंडिविजुअल क्या है, कलेक्टिव क्या, वो पढ़ेंगे, बट फंडामेंटली कॉन्सेप्ट ये है। अब ये हमने क्यों चुना, क्या रैशनल है इसके पीछे? सबसे पहला, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी हो नहीं सकती। डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब हो और तब तक हो जब तक मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा चाहती है कि आप हो। सिंपल। इससे बड़ी अकाउंटेबिलिटी कहीं है ही नहीं। कल को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यू आर डन। और ये बहुत कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कभी भी इन्वोक किया जा सकता है अगर हाउस सेशन में है तो। ये कोई पीरियोडिक नहीं है कि साल में एक ही बार कर लोगे। दूसरा, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। It creates a sense of harmony between the legislature and the executive. सिंपल मतलब क्या हो? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप प्रेसिडेंट को अलग चुन रहे हो और प्रेसिडेंट फिर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिसको प्रेसिडेंट का कैबिनेट कहते हैं, प्रेसिडेंट का स्टाफ कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहते हैं यूएस में, वो अपना देखेगा। यूएस में आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अलग चुनते हो, उनके पास रियल और नॉमिनल पावर दोनों है। हमारे यहां प्रेसिडेंट को हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उनके पास कोई रियल पावर नहीं। जिसके पास रियल पावर है वो हाउस से निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैंडेटेड है ना? क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है, यू आर इफेक्टिवली ए लार्जर पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर। तो सिंक है। इसका मतलब इनके बहुत सारे एक्शंस विल बी अकाउंटेबल हियर। इनको अपनी फ्रीडम भी दी जाएगी, इनको अपने काम करने का स्पेस भी दिया जाएगा। बट इंडिया में आप सुबह उठ के ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मैं बॉर्डर पे एक वॉल बना दूंगा मेक्सिको के साथ। आप सुबह उठ के इतना कोर टैरिफ रेजिम पलट नहीं सकते। आप मेजर यूएन ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं there is a sync and there's a harmony which leads to accountability. Ministers are drawn from the legislature. It is nothing but responsible government. ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अपने एडवांटेजेस नहीं है। थिंग्स आर फास्टर, स्मूदर, मोर डिस्टिंक्ट। यहाँ एग्जीक्यूटिव को लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट में अटका पड़ा है, अब क्या करें। पार्लियामेंट को बोलो, वो कहते हैं जी मंत्री कुछ नहीं कर रहे। तो देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू बोथ। दिस सूट्स इंडिया द मोस्ट। दिस इज suited to India's socio-political context. हमारी डाइवर्सिटी, मल्टी पार्टी सिस्टम, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी,
the history of colonialism, sort of familiarity with the parliamentary structure, all of these are nothing but building blocks to a parliamentary system, right? और जितनी पावर डिसेंट्रलाइज्ड होगी, जितनी पावर बटी हुई होगी, उतनी ही लेसर चांसेस है अथॉरिटेरियनिज्म के। ठीक है। एंड देयर आर सम कोर लेगेसी फैक्टर्स। क्योंकि हम पे यूके ने राज किया, तो 1919 एक्ट और 1935 एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम्स लगे इंडिया में। बहुत ही कॉम्प्रोमाइज पार्लियामेंट्री सिस्टम थे, लेकिन ढांचा तो पार्लियामेंट्री था। यस, एंड दिस आल्सो गिव्स यू ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। एक यूएस के प्रेसिडेंट को निकालने में और एक इंडिया की सरकार गिराने में जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का। That is why it becomes very important to understand these things in that context. ठीक है, क्लियर? Again, Nisha, this is not beta a mains class. Please understand this. The whole point is कल को prelims में आ गया which of the following support the reasons behind parliamentary system. तो हमको ये ढूंढने एग्जाम्पल्स है, होना बिल्कुल चाहिए। आई एग्री विद यू निशा, बट पॉइंट यहां पे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी तो है, तभी तो 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर गई आफ्टर लॉस ऑफ मेजोरिटी पोस्ट इमरजेंसी। 1999 में वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट एक वोट से गिरी, बट गिरी ना। हार्मनी का कितना सिंपल एग्जांपल है, द यूनियन बजट व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर हु इज a member of the parliament, is debated and passed in the parliament, showing seamless coordination between executive and legislature. है ना? Make sense? ये एक अच्छी बात भी नहीं है, बट हमारे देश की रियलिटी क्या है? एट अ पार्लियामेंट्री लेवल प्राइवेट बिल्स को पास करे हुए अरसा हो गया। मोस्ट बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट and most bills that are passed are government member bills, right? After the 1980s we've not had a single private member bill being passed. बहुत इंट्रोड्यूस होते हैं, बहुत डिस्कस होते हैं, पास कुछ नहीं होता। हमारे सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझो। जब 2009 एंड 2014 के बीच में यूपीए का अलायंस था, 1998 और 2004 के बीच में एनडीए का अलायंस था, कोalition गवर्नमेंट्स थे, आपने रीजनल पार्टीज को अकोमोडेट किया, whether it was DMK, TDP, Shiv Sena, JDU, whatever it might be. We reflected India's federal character. आज भी आप न्यूज में पढ़ते हैं कि जब भी कोई मेजर लेजिस्लेशन होता है, जीएसटी हो गया या विमेन रिजर्वेशन हो गया, ऑल पार्टी मीटिंग्स आर कॉल्ड फॉर। अब उसमें पार्टीज अटेंड करें या ना करें, बट ऑल पार्टी मीटिंग्स आर कॉल्ड फॉर, राइट? एंड इट फंडामेंटली प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म। इमरजेंसी इज अ क्लासिक एग्जांपल। जब ऐसा हुआ, then through the 44th
constitutional amendment. We rectified a lot of loopholes in the constitution. 44th amendment is nothing but a post emergency reform amendment. It strengthened parliamentary oversight, right? Yes. आज भी क्वेश्चन आवर, CAG reports, public accounts committee, you are questioning the actions of the government. अभी CAG की स्किल्स पे रिपोर्ट आई है. Now people are questioning कि आपने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे तो बेवकूफ बनाया है पूरे देश में, राइट? देयर आर ऑल्सो लेगेसी फैक्टर्स इन प्लेस. हमारे जितने मेन स्ट्रीम पुराने लीडर्स थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजा गोपालाचारी, दे ऑल gained legislative experience under 1919 Act and 1935 Act. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आप डिबेट्स देखेंगे, बोथ नेहरू एंड अंबेडकर फेवर्ड ए पार्लियामेंट्री सिस्टम for simple reasons that this is more suitable and more familiar to us. Simple as that. जो कल हम बात कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव को लोकसभा का भरोसा चाहिए, लोकसभा को एग्जीक्यूटिव का भरोसा नहीं चाहिए. That gives you flexibility, gives you responsiveness. So in 1990, when VP Singh loses majority, a new government under Chandrasekhar is formed, nothing happens to the Lok Sabha, continues. कितनी बार हमें स्टेट्स में देखने को मिलता है, सेम रूलिंग पार्टी, डिफरेंट चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र, कर्नाटका. You don't have to go to fresh elections, and elections are a massive exercise, right? माना प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड हैं, you are still accountable. The prime minister is not above any institutional check. Your departmentally relating standing committees, everybody else, keep on frequently questioning ministers, right? So, for these reasons, we chose a parliamentary system of government. और बहुत जरूरी था. Clear on this? Make sense? Good. Now, हमने कहां से लिया? हमने अपना सिस्टम लिया यूके से. हमने अपना सिस्टम लिया यूके से. यूके के सिस्टम को हम कहते हैं द वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इसी को हमने थोड़ा सा इंडिया में अडेप्ट किया विद अ फ्यू चेंजेस. We have not blindly copied the Westminster form of government. It would have been very, very problematic. Are we clear on this? Do we understand this? Yes or no? ठीक, बढ़िया. तो अब let us simply understand Westminster system में क्या होता है और क्या नहीं होता है. ठीक है, चलो शुरू करें. डन. एक सेकंड, थोड़ा सा वॉल्यूम एडजस्ट कर दूं. थोड़ा सा एको आ रहा है.
थैंक यू देवांश, आई लेट हिम नो, इट इज ऑल हिज हार्ड वर्क। चलिए शुरू करते हैं। गुड। तो पहले तो बेसिक फर्क सीख लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज डीपली एज पॉसिबल, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? वेयर द एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर से आ रहे हो, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल हो, एंड देयरफॉर द पावर्स आर फ्यूज्ड और आर मर्ज्ड टुगेदर। ठीक है, बेसिक। ठीक है, तो हमारे और उनके में बेसिक सिस्टम क्या फर्क हुआ, कहां से फर्क हुआ, ध्यान से देखते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। The fundamental point of difference starts with monarchy. Let's start with the constitutional basis. ठीक है, हमारे यहां और उनके यहां में फर्क क्या है? They have an unwritten constitution. There is no core basis as such. और हमारे पास प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है 1950 का। ठीक है, तो यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से आ रहा है? उनके एक्ट से आ रहा है, यूनियन एक्ट, पार्लियामेंट एक्ट। उनके कन्वेंशन से आ रहा है, उनके कस्टम से आ रहा है। हमारा तो सीधा सीधा यहां से आ रहा है ना? सिंपल एज दैट। यूके हैज द पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911, देन अ रिवाइज्ड एक्ट ऑफ 1949, वो उनके वहां से आ रहा है। तो बेसिक फर्क क्या हुआ? इनके यहां पार्लियामेंट एक तरह से सुप्रीम हो गया, और हमारे यहां रिलेटिवली कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो गया। मुझे पता है हम प्रियम्बल में कहते हैं कि अल्टीमेट सुप्रीमेसी हमारी है, बट वो तो पोएटिक बात है। लीगली देखा जाए तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड, एंड देन देयर इज अ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ रिपब्लिकनिज्म। यहां एक, हम तो प्रॉपर एक रिपब्लिक है, दे कंटिन्यू टू बी अ कोर मोनार्क, राइट? और यहां से हेड ऑफ स्टेट के डिफरेंसेस आ जाते हैं। मोनार्क है तो फिर ये हेरिडिटरी होगा। हमारे यहाँ प्रॉपर इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब तो यही है। बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, both are ceremonial in nature, both are enjoying mostly nominal powers। फर्क यह है कि हमारे और उनके पावर्स में, हमारे रिपब्लिकन, हमारे प्रेसिडेंट के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है, राइट? बहुत बेसिक फर्क देखो। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 इज डेड क्लियर, द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 इज डेड क्लियर, द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। सिंपल, एक लाइन में लिखा हुआ है। यस। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? जी, यूके के मोनार्क अपॉइंट कर रहे हैं। कहां लिखा है? बेस्ड ऑन प्योर कन्वेंशन। क्लियर? डू वी अंडरस्टैंड दिस? The monarch of England appoints the prime minister on convention. The president of India appoints the prime minister on constitutional provisions. और फिर यहां से हेड ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। पीएम वर्सेस पीएम,
Both have real executive authority. One is appointed by the president, the other is appointed by the monarch. Both need to have majority in the respective lower houses. Both need to have majority in the respective lower houses. यूके की लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, हमारी लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं. हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को जो रिकग्निशन मिलती है वो आर्टिकल 74 और 75 के थ्रू मिलती है. वहां पूरा कन्वेंशन बेस्ड है. कॉन्फिडेंस उनको भी चाहिए, कॉन्फिडेंस हमको भी चाहिए, राइट? एंड प्राइम मिनिस्टर्स आर हैंडलिंग हु? द मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर्स आर हैंडलिंग हु? द मिनिस्टर्स. हमारे यहाँ मिनिस्टर्स एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड है, वहां जो है मिनिस्टर्स कन्वेंशन के बेसिस पे है. हमारे यहाँ जो कहते हैं ना आर्टिकल 75(3), काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, वहां वो पूरा कन्वेंशन बेस्ड है. वहां वो पूरा कन्वेंशन बेस्ड है. So is collective responsibility legally enforceable in India? Yes. In the UK, no. It is political. क्या वहां मिनिस्टर्स को एमपी बनना जरूरी है? हाँ, हमारे यहां भी जरूरी है. हमने यहाँ 6 महीने डाल रखा है, वहां ऐसा 6 महीने लिखा नहीं. ठीक है. The relationship between the legislature and the executive is more or less the same. Both are parliamentary systems, तो ये जो रिलेशनशिप होगा ये सेम होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा. Then you will see the difference in how upper houses function, right? हमारे यहाँ क्योंकि हम एक डेजिग्नेटेड फेडरल रिकग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां तो ऐसा नहीं. उनके अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, हमारे अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं. हमारा राज्यसभा वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 10 टाइम्स मोर पावरफुल है. यस और नो? 10 टाइम्स मोर पावरफुल है. क्यों है ऐसा? बिकॉज आवर राज्यसभा इज स्टिल इनडायरेक्टली इलेक्टेड. Their Rajya Sabha is dominantly based on hereditary positions. जहां कुछ हेरिडिटरी हो जाएगा वहां ऑटोमेटिकली पावर्स कम हो जाएंगी. ठीक है. एक्सेप्ट फॉर मनी बिल्स, एंड बजट इज अ काइंड ऑफ अ मनी बिल, लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल लेजिस्लेटिव कैपेसिटी. Except for money bills, and budget is a kind of a money bill, Lok Sabha and Rajya Sabha have equal legislative capacity. वहां it is even further weaker. तो अगर प्री में स्टेटमेंट आता है इंडिया राज्यसभा is stronger and has more power, तो क्या वो फंडामेंटली सही है? यस. क्लियर? मेक सेंस? That is a question. Net is working perfectly fine. Net is perfectly fine. Fine now. फाइन. अगर स्टेटमेंट आता है
that India's Rajya Sabha has wider powers and has more powers than UK's House of Lords, तो वो स्टेटमेंट फंडामेंटली करेक्ट है. क्यों? Not because of parliamentary system, but because we are a federal parliamentary system. They are not. They're a unitary parliamentary system. फर्क समझ आया? Are we clear on this? Simple. उनके राज्यसभा का कॉम्पोजिशन हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहां इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप फंडामेंटली फेडरल हैं तो आपके सेकेंड हाउस को बहुत हद तक इक्वल जगह रखना पड़ेगा. लेजिस्लेटिव कैपेसिटी ऑलमोस्ट इक्वल देनी पड़ेगी. कुछ कुछ चीजों के लिए आपको राज्यसभा की परमिशन लग सकती है. यस, ठीक है. तो ये फंडामेंटल डिफरेंस हमें आना चाहिए. तो इसका मतलब अगर यहां पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है तो इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू यहां कम होगा. हमारे पास रिलेटिवली जुडिशियल रिव्यू ज्यादा होगा. यहां जुडिशियल रिव्यू एट द मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का होगा. बहुत ही रेयर केसेस में वो कुछ लॉ रिव्यू करेंगे. यहां द इंटायर यूनिवर्स इज योर प्लेटर. अगर प्री में सवाल आता है कैन द कोर्ट्स ऑफ यूके स्ट्राइक डाउन लॉज, दैट आंसर इज गोइंग टू बी नो. कोर्ट्स ऑफ यूके कैन नॉट स्ट्राइक डाउन अ लॉ. इंडिया, यस. इनफैक्ट हमने तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, which is nothing but an application of judicial review. ठीक है. सो हमारे यहां एटलीस्ट लिमिटेड जुडिशियल सुप्रीमेसी है. यहां तो बिल्कुल भी नहीं है. नन व्हाटसोएवर. करेक्ट. नो. यूके सुप्रीम कोर्ट 2010 का बनाया. Parliament is supreme. Parliament gives the powers to the executive to make, execution decisions. Yes. So can the UK review executive decisions? Yes. तभी कॉन्सेप्चुअली कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत यूके में हुई होगी, लेकिन असली जुडिशियल रिव्यू की ताकत यूएस में दिखी. And that is why when we were framing our constitutions, we were more inspired by how the US looked at judicial review, not the UK. Yes. Trent versus Stratford, Marbury versus Madison, so many cases. Marbury is where judicial review was effectively outlined. ठीक है? Clear? इंडिया में कन्वेंशंस प्ले अ सप्लीमेंट्री रोल. यूके इज लार्जली ड्रिवन बाय कन्वेंशंस. लार्जली. ठीक है. अब लॉजिकली सोचो. अब ध्यान से सुनना. पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी यूके में ज्यादा है. तो पार्टी डिसिप्लिन भी यूके में ज्यादा होना चाहिए. राइट.
इंडिविजुअलिटी ऑफ मेंबर्स भी यूके में रिलेटिवली ज्यादा होनी चाहिए, राइट? फेडरल नहीं है तो अपर हाउस का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कम मिलेगा, अपर हाउस का रिस्ट्रिक्शन, उनका फ्रिक्शन कम मिलेगा, राइट? जुडिशरी का इंटरवेंशन लिमिटेड होगा। सवाल तो ऐसे आ रहे हैं ना प्री में, तो ऐसे सोचना पड़ेगा, करेक्ट? यूके विल ऑब्जर्व greater party discipline and will observe greater individuality of members than India. इंडिया में अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता तो पार्टी डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं थी, है ना? हमारे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं दे रखा। The first time we heard the word political party in our constitution was in 1985, 52nd Amendment, which inserted the 10th schedule. Political parties are the soul of a parliamentary democracy. नहीं तो आप मेजोरिटी ला ही नहीं सकते, डिटरमिन ही नहीं कर सकते, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग सा हिसाब किताब है। कोई नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज आर कंपल्सरी फॉर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कोई नहीं कह रहा पॉलिटिकल पार्टीज आर कंपल्सरी फॉर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बट बिना पॉलिटिकल पार्टीज के आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्ट्रक्चर नहीं ला सकते, राइट? इनकरेक्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज आर मेंशन्ड, टेंशन। Amandeep, so the party can take stronger action against the ministers, can take stronger actions against MPs. Parliamentary parties can come stronger actions. Yes or no? मेरी खराब है क्या? ओके, ओके, यार गड़बड़ हो जाएगी अब। नॉट ओके ना? प्रीति, the internet is better here.
Is that अब ठीक है? समझ आया? Now, at the same, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके में है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी यूके में है, जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है वो आपको ज्यादा कहां देखने को मिलेगी, यूके में या इंडिया में? यूके में। जहां पावर ज्यादा होगी वहां डोमिनेंस ज्यादा होगी, राइट? सब कुछ वहीं पे बेस्ड है। पावर ज्यादा होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा होगी। वेयर इज अ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यूके और इंडिया? यूके। माना कि लीगली हमारे पास प्रोविजन ज्यादा है, लेकिन इफ यू लुक एट द मेजर्स दे आर स्लाइटली बेटर। ठीक है, गुड। आर वी क्लियर ऑन दिस? मेक सेंस? ठीक। तो हमें यूके और इंडिया का बेसिक बेसिक फर्क समझ में आ गया। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की वजह से क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, एंड which house has more power over the other. Lower houses are same place, are superior to India as a house. Yes, Anushka, all that I'm saying is house comparisons. See, the problem is this. Now, this is my internet setup right now. The speed cannot be better than this. We've got low latency, very high download, and fairly good upload. तो इंटरनेट मेरे एंड पे नहीं है प्रॉब्लम, इट इज अ सिस्टम एरर। So now we always keep a higher setup. That is why. And only connected here, मतलब there's no other system connected to the internet than mine. चलो, कोई बात नहीं, यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes. Good. Now, why is the UK's executive, not only executive is more powerful, there's more dominance of the executive on the legislature. There is more dominance of the executive on the legislature. Saurabh, do you understand the difference? Not powerful, dominant on the legislature. Do we understand the difference now? Clear? Yes? Good. Okay.
quickly, India versus US, the backdrop of parliament versus presidential. Now let's understand this. What is the conceptual difference between a parliamentary system and a presidential system? We'll understand the difference in the context of the two countries. ठीक है, तो सिंपल हो जाता है. ठीक है. Conceptually, the parliamentary system comes from Britain, their Westminster model. Westminster is because that is where the parliament is situated. And the example that we take of a presidential system is the US, the 1787 Constitution. The fundamental difference is a merger of legislative and executive powers. And here you would see a relatively strict separation of legislative and executive powers. Because of this, the executive is accountable to the legislature here. And because of this, the executive here is directly accountable to the people, to the citizens of the country. Okay? Good. Now, very important. Executive is accountable to the legislature. मतलब जब तक लेजिस्लेचर को कॉन्फिडेंस है तब तक एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव रहेगा. तो टेन्योर लेजिस्लेचर का होता है, एग्जीक्यूटिव का नहीं होता. कॉन्सेप्ट. There's no such thing called the tenure of ministers. Yes or no? There is no such thing called the tenure of ministers. बट यहां तो एग्जीक्यूटिव के पास रियल पावर है एंड दैट टेन्योर इज फिक्स्ड बिकॉज देयर इज अ सेपरेट इलेक्शन फॉर देम. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई जनरली द एग्जीक्यूटिव हियर इज इलेक्टेड from a selection manner or an indirect manner. यहां पे the executive is elected relatively directly. ऐसा नहीं है कि यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्योर डायरेक्ट इलेक्शन है, ऐसा भी नहीं है. बट पीपल आर समवेयर डायरेक्टली इन्वॉल्व. ठीक है. क्लियर. So therefore what ends up happening in parliamentary systems is that there is a dual executive. Whereas in the US or presidential systems, you will see the concept of a single executive, where real and nominal powers are with the same. यहाँ real और nominal powers separated होते हैं. ठीक है. Clear? Good. Now think of it analytically. The scope of a deadlock between the executive and the legislature. Will it be more in presidential or more in a parliamentary system? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में लड़ जाएंगे, ये ज्यादा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होगा या पार्लियामेंट्री सिस्टम में होगा? ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होगा. यहां तो पावर्स ही फ्यूज्ड है. ठीक है. वेरी गुड. समझ में आया? गुड. नाउ व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, as Preeti has rightly said, Sumit has rightly said, Prime Minister is head of government, then the President is the head of the government in the state. कि इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम implication ये हुआ कि इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम the separation of powers is partial.
No, no, it's not. It's okay. One second. Is it okay? ठीक है. चलो, let's continue. Let's try it one more time, please. Hmm? Okay. So, in terms of a deadlock between the executive and the legislature, in terms of a point of friction between the executive and the legislature, वो कॉन्फ्रंटेशन आपको यूएस में ज्यादा दिखेगा, वो आपको इंडिया में कम दिखेगा, बिकॉज यहां देयर इज अ बेटर फ्यूजन ऑफ इट ऑल, राइट? सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. अब इसके अलग इंप्लीकेशंस सोचो कि हमारे यहां जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट हो रहा है वो इलेक्ट तो मेजोरिटी के बेसिस पे हो रहा है. द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेटिव मेजोरिटी. In a presidential system, the executive is not dependent on legislative majority. The executive is not dependent on legislative majority. ठीक है. So यहां पे हमारे पास ministers have to be a member of the legislature at some point. वहां पे expressly forbidden that ministers can be members of legislature. Yes. Good. Where will you see a more stable and a more continued government? A presidential form? US. Because they are not dependent on legislative majority. Where will you see structurally better judicial review? Presidential setup. Because roles are clearly divided. X is the legislature, Y is the judiciary, Z is the executive. Right? Yes. Absolutely. समझ आया? So the implications are these. So India has partial separation of powers, diluted separation of powers, where the US has stricter setup. Can the US Parliament is called US Congress, US Lok Sabha is called House of Representatives,
यूएस राज्यसभा is called Senate. ठीक है. Can the House of Representatives pass a motion of no confidence against Council of Ministers or the President in the US or the President's staff, the cabinet? No, not at all. Ordinarily, can the President or the President's cabinet, under ordinary circumstances, can they dissolve the legislatures of the US? No. So when everybody's job is so clearly defined, judicial review will structurally be more clearly defined. ठीक है? Make sense? India में through innovation of courts, we have stronger powers given to the courts. But constitutionally, US has stronger judicial review than us. ये distinction समझ में आया? अगर कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करेंगे, यूएस हैज ग्रेटर स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू. हमने तो उसमें पीआईएल भी डाला, सुओ मोटो भी डाला, हमने उसमें क्या बोलते हैं कंप्लीट जस्टिस भी डाला, राइट? So practically it has so happened that the Indian Supreme Court is the most powerful Supreme Court in the world. Constitutionally, it has been the US. ठीक है? Clear on this? Yes. The reason we have to do this little conceptually is because questions are coming on comparative basis. ठीक है? इसके ऊपर मेंस की कहानी शुरू हो जाती, कहां, क्यों, कैसे, क्या नहीं. बट एक एंड इट ऑल कम्स डाउन टू कोर थिंग्स. एग्जाम में आएगा, हमको कोर स्टेटमेंट्स याद रखने हैं कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर. इसका क्या मतलब होगा? दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स की डिग्री, इसका क्या इंप्लीकेशन होगा? रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या इंप्लीकेशन होगा? राइट? एंड दिस विल डिटरमिन कोर डिफरेंसेस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स. ठीक है? If US did not have a written constitution and continued it to be a presidential democracy, it would have most likely slipped into an authoritarian regime. What has prevented it from doing so is the fact that there is a written constitution. क्योंकि यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, you don't have a written constitution is pardonable. But if it is a presidential system which is already high on concentration of power, it is high on stability, it is low on accountability, the least you can do is supplement it with a written constitution. समझ आ रहा है? But in India, when we bring in a federal system where powers have to be divided between the center and the states, you cannot let it be on the basis of an unwritten constitution. The same logic applies here and the same logic applies here. तो अगर prelims में आता है, which of the following are essential features of a federalism and written constitution is one of them? Yes. Remember the larger framework, it is all connected. ठीक है? Yes, absolutely.
Now that the base is set, now we understand why the president, who's the part of the parliament, what are the core essentials, क्या क्या implications निकल सकते हैं. इसके बाद is a technical exercise. Now we move to core houses. Simple कहानी है. What is Lok Sabha at the union level is state legislative assembly at the state level. मैं शाम को बैठूंगा, कल तक फिनिश नहीं हो पाया. What is Rajya Sabha at the union level is state legislative councils at the state level. These are supposed to be mirror houses. Now understand the difference. The purpose of Lok Sabha and assembly is the same. If the purpose of Lok Sabha and assembly is the same, then they will just be numerical differences of each other. Bas. Both celebrate direct elections. Both are instruments of parliamentary democracy. But the purposes of Rajya Sabha and Council are not necessarily the same. So there will be a greater gap between the Rajya Sabha and the Council as opposed to the Lok Sabha and the Assembly. Which will also mean Assembly and Council will not be collectively parallel to Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है? गुड. यहां तक समझ आया? डन. ठीक है. लॉ की भाषा में शैल मतलब कंपल्सरी, में मतलब करना करना, नहीं करना मत करना. ठीक है. लॉ की भाषा में शैल मतलब कंपल्सरी होता है. ठीक है. गुड. So which of the following are compulsory? Is Lok Sabha compulsory? Absolutely. India is a federal country, so is Rajya Sabha compulsory? Absolutely. Absolutely. State legislative assemblies, if you've created a federal setup, so you need representation at the federal setup. Are they compulsory? Yes. But this is not compulsory. हमने याद है जब majorities पढ़ रहे थे, when we were studying majorities, we referred to Article 168, 169. Yes. We understood the entire process. कि स्टेट को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी 2 से, फिर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी अंडर 168 which will not be an amendment under 368, and 168 tells you which all states have it and which all states don't. ठीक. Now Lok Sabha is your national representative house. That means it should be representing all states and all union territories, with legislatures and without legislatures. Because here you're going to maybe making laws for the whole country. अगर पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ लक्षद्वीप में लगेगा तो लक्षद्वीप का रिप्रेजेंटेटिव भी पार्लियामेंट में होना चाहिए. अगर एमपी के रिप्रेजेंटेटिव्स एमपी के इश्यूज पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकते हैं तो यहां पे भी कर सकते हैं. Yes or no? So Lok Sabha becomes your universal representation chamber. And as of today, only has elected members. Does not have nominated members anymore. Nomination पहले होता था एंग्लो इंडियंस के बेसिस पे. Through a recent constitutional amendment, we have removed it.
Yes or no? Make sense? Good. Yes. Very good. क्या एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं. 102 नहीं है बेटा, 104 है. यस. सो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव्स एंग्लो इंडियंस. ठीक. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इनसिग्निफिकेंट हो गई थी एंड दे हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू मेनस्ट्रीम पॉपुलेशन, सो स्पेशली करने की जरूरत नहीं. दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन आर्टिकल्स 331 एंड 333. तो इनमें चेंजेस हो गए, इनऑपरेटिव हो गए. अभी क्लियर ऑन दिस? यहां तक समझ आया? पक्का? नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब कुछ पॉलिटिको ज्योग्राफिकल रीजन्स बनाने पड़ेंगे. दीज आर कॉल्ड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, दीज आर कॉल्ड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज. These are called assembly constituencies. Now, the important conceptual part for the prelims exam. India is divided into states and union territories. Yes or no? India is divided into states and union territories. इसके बाद we have two kinds of divisions, an administrative division and a representative division. ये जो representative division है ये local है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पे बेस्ड है. डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ब्लॉक, विलेज, इसमें आप रूरल और अर्बन काउंटर पार्ट्स लगा लो. एंड यहाँ यू विल हैव इन द रूरल पार्ट अ 3-tier सिस्टम, इन द अर्बन पार्ट अ 2-tier सिस्टम. यस और नो? मेक सेंस? करेक्ट? ठीक. ये तो स्टेट्स के अंडर हो गया. दिस इज इनसाइड अ स्टेट और इनसाइड अ यूनियन टेरिटरी. अब मुझे लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है और मुझे असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है. These are called parliamentary constituencies and these are called assembly constituencies. I have to divide my country in such a way that approximately the same number of people are within each parliamentary constituency and within each assembly constituency. यही बात है ना? ये आप ऑल इंडिया यूनिफॉर्म नहीं कर सकते. अगर आपने ये एक लेयर बनाया है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. इंडिया इंडिया तो कुछ नहीं है, तो बेस तो आपका ये है. तो सब कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू होता है. क्लियर? दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेडरलिज्म. अगर प्रीलिम्स में आता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर ड्रॉन by combining assembly constituencies, वो relatively सही होगा. They are drawn on the territorial divisions of assembly constituencies, वो सही होगा. Yes or no? समझ आ रहा है? हमारी फेडरलिज्म की ब्यूटी यही है, हमारी फेडरलिज्म की ब्यूटी यही है कि हम लोकसभा की सीटें स्टेट वाइज काट रहे हैं. यही है. हालांकि हम इलेक्शन स्टेट वाइज करते हैं, लोकसभा के भी फेज वाइज होते हैं, तो एक एक स्टेट का इलेक्शन अलग से करते हैं. राइट? हर स्टेट में एक इलेक्टोरल ऑफिसर बिठाया जाता है, एक मशीनरी बिठाई जाती है. अंटिल साइमल्टेनियस इलेक्शंस किक इन, यही कहानी है.
तो ढांचा हम स्टेट लेवल पे बनाते हैं। तो जब आप ढांचा स्टेट लेवल बनाओगे, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज बॉटम अप, डेमोक्रेसी इज नेवर टॉप डाउन। तो स्टेट लेवल पे बॉटम अप क्या हुआ? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कटती है, फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ करी जाती है। यस, और आप कोशिश करते हो कि ये सब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना आसान हो जाए। तभी तो देखते हो ना, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जनरली ऐसा होता है ना, पक्का। दिस इज वाई electoral rolls are based on assembly constituencies. Yes or no? This is why electoral rolls are based on assembly constituencies, then parliamentary constituencies. फेडरलिज्म को हल्के में मत लो, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, समझ आया? गुड। तभी कहते हैं कि सपोज अगर ये कोई स्टेट है, स्टेट एक्स, अगर कोई ये स्टेट है स्टेट एक्स, इसमें हमें एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज काटनी है। एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 1, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 2, 3, 4 और 5, राइट? You would cut it in a way that approximately the same number of people are in each constituency within the state X. ये कहते हो ना? और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी टू पॉपुलेशन का रेशियो है, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए मोर और लेस। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी और पॉपुलेशन का रेशियो है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। आया समझ में? आर वी क्लियर? पॉलिटी पढ़ रहे हो यार? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, करंट स्ट्रेंथ कोई नहीं पूछता, ये पूछते हैं द डिजाइन ऑफ द इलेक्टोरल साइकिल। पक्का? मेक सेंस? करेक्ट। तो माना कि कहानी लोकसभा से शुरू हो रही है, लेजिस्लेटिव assembly constituencies are the building blocks of parliamentary constituencies. ठीक है? तो खैर, हमने पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा। ये क्या है? 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यस, and these 543 constituencies are arranged state wise. अगर प्री में क्वेश्चन आए, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर नेवर शेयर्ड बिटवीन स्टेट्स, क्या वो सही होगा? यस। X is never 15% margin given to election commission by the election commission through the rules, more or less the same. ठीक है आयुष? क्लियर? ये समझ आया? तो एज टुडे जो हमारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हमने सीखा था वो पॉपुलेशन में कि 1971 को लेके हम इतने इन्फेस्टेड क्यों थे, जब हमने सिटीजनशिप वगैरह पढ़ा था। तो गुड, नंबर इज फ्रोजन ऑन द 1971 सेंसस। ठीक है, क्लियर? और टिल 2026 ये इंपॉर्टेंट है, फ्रोजन टिल 2026। ये किसने डिसाइड किया? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001। पहले डिसाइड किया कि हम 2000 तक करेंगे,
This was 42nd Amendment 1976. But what froze it till 2026? 2001 Amendment. ये समझ आया? पक्का? क्लियर? और देखो कितनी सुंदर बात है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी. मतलब the number of constituencies in a state is not mentioned in the constitution. This is all mentioned in Representation of People's Act, Schedule 1. The only seat allocation which is mentioned in the constitution is Rajya Sabha. Why? Because federalism. Schedule 4. In fact, changes to Schedule 4 for non-territorial reasons require special majority 3. That is state ratification. तो इसका कहने का मतलब ये है कि लोकसभा सीट्स, असेंबली सीट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स, ये तीनों की तीनों चीजें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में लिखी. यहां पहले आपको 68 में स्टेट एक्ट का नाम ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी लगेगी. इसमें भी सीट ऐड करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी लगेगी. सो बाय द सेम लॉ यू कैन डू बोथ चेंजेस. है कि नहीं? स्टेट को अग्री करने के लिए स्पेशल 2, नाम 168 में ऐड करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी. क्लियर? मेक सेंस? गुड. So ROPA Schedule 1 Lok Sabha seats, ROPA Schedule 1 Lok Sabha seats, ROPA Schedule 2 State Legislative Assembly seats, and ROPA Schedule and ROPA Schedule 3 State Legislative Council seats. हर्षवर्धन सिंपल तरीका है. Everything conduct of elections is ROPA 51. Everything arrangement of electoral policy is ROPA 1950. Correct? समझ में आया? पक्का? Make sense? HSH 40901 बेटा वो अमेंडमेंट करा था ना आर्टिकल 80 में. यस और नो? आर्टिकल 80, 81 लोकसभा कॉम्पोजिशन आर्टिकल 81 रेड विद शेड्यूल 1. आर्टिकल 81 कहता है 543 सीट्स होंगे. शेड्यूल 1 इज अ सप्लीमेंट्री प्रोविजन टू आर्टिकल 81. यस और नो? Are we clear on this? Good. और पार्लियामेंट को ये सब करने की पावर कहां से आ गई भैया? पार्लियामेंट को ये सब लॉ बनाने की पावर, ये सब ऊपर नीचे खेल कूदने की पावर कहां से आ गई? अरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां? Who gave the power to the constitution to make representation of people's act? किसी ने तो दिया होगा ना, किसी ने तो कुछ तो बोला होगा कि आप कर लेना, हम नहीं करेंगे. Entry number 72 Union List. Election to the Parliament, legislature to the states, offices of the President and the Vice President, and the Election Commission. तभी तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, खोपड़ी घूमने के बाद पार्लियामेंट ने सीईसी एक्ट ही चेंज कर दी. पहले थी ना सीईसी एक्ट 1991, अब फिर ले आए ना नया इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023. Yes or no? Okay. So that is how provisions are read together. So Article 81, read with entry number 72 of the Union List, allows for the representation of People's Act. 81 तो आपको लिमिट दे रहा है
कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने सीट कहां होगी, दैट इज डन सेपरेटली. आर्टिकल 81 ओनली टेल्स यू द मैक्सिमम नंबर. अब कौन सी स्टेट में कितनी सीट होगी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की पावर पार्लियामेंट के पास है, तो सीट्स भी पार्लियामेंट के पास होगी. यस आदित्य, दैट इज अ डार्क डार्क स्पेस बेटा. इट इज अ डार्क डार्क स्पेस. PhDs have been written on whether the parliament can nullify a Supreme Court judgment or not. Are we clear on this? Understood. कॉन्सेप्ट समझना है, रेस्ट इज गुड. आया समझ में? पक्का? मेरे लिए बहुत आसान है, दो टेबल बनाना, बोलना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये मैक्सिमम सीट, ये मिनिमम सीट. लेकिन टू गो बैक टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इज इजियर. ठीक है? आर वी ओके विद दिस? Done. Can we take a 5 minute? We can take a 10 minutes break. ठीक है, डन. आराम से, आराम से. It's 1.5 hours. We can take a 10 minutes break. Can quickly eat something and come. I know, despite all of this, we'll do 3 sessions today, Saurabh. We'll do 3 sessions. Class is running 5. Just 1 second. Let me just check. Let me just check. 1 second. Pooja, I didn't get your message. I'm sorry. Just could you drop that message again? I checked yesterday. Okay, so we have the next class lined up at 8:15, so we can join on the fresh link. Link at 8:15? Yes. Is that okay? Good. Done. So have an early dinner. I'll see you at 8:15. And then we'll cover from here. Thank you. See you. Bye-bye. Komal, your doubt? Can Parliament nullify a Supreme Court judgment by passing an ordinary law, amendment reenacting the same law? Parliament has no such. I would take. Where does the Parliament get that power from? Can pass an ordinary law also, of course, depending on what the judgment is about. See.